আদৰৰ আচুৰ সহযোগ কৰিছে সানৰাইজ মছলা গুণে মানে শ্ৰেষ্ঠ Tata Curve. Take the curve. আজিও যে হ'ব কিবা মানে আছে নেকি হলেও তুমি আৰু অকলে অকলে কিমান চাবা এফালে মাইনীবাক চাবা নে ঘৰৰ কামবোৰ আছেই দেখোন আপুনি সোনকালে উঠি মুখাৰ কেইটা ধৰি ওলাই যাওক কলৈ ওলাই যাম খানাপাৰালৈ তাত গৈ পিনে আপুনি লৈ আহক গৈ আমাৰ গাড়ী গুৰা নাই নহয় ৰাস্তাত তুই কিবা অসুবিধা পাইছিলি নেকি নাই একো অসুবিধা হোৱা নাই দেউতা ক'ত বল ভিতৰত আছে আহ ভাবিছিলো নতুনকে চাকৰি বেছি 100 টকা এটা বাঢ়ি দিব চালা 50 টকা এটা কমহে দিলা কিশোৰ চালোৱা প্ৰেৰণা বা অ তুমি কিমান সময়ত যাবা কলৈ অফিচলৈ মোৰ অফিচ নাই নহয় কিয় তুমি নীলিম দাহঁতৰ অফিচত জইন কৰা নাছিলা নেকি নীলিম দাই দেখোন নিজে দুবৰীহঁতৰ অফিচত জইন কৰিলে কি তুমি গমেই নোপোৱা নেকি নাই অফিচৰ সকলো পুৰণা এমপ্লয়ী এতিয়া দুবৰীহঁতৰ অফিচত জইন কৰিলে নতুনকৈ নীলিম দায়ো জইন কৰিছে তেনেহ'লে তুমিনো কেনেকৈ বাদ পৰি গ'লা মোকো কৈছিল কিন্তু মইহে জইন নকৰিলো সকলোৱে জইন কৰিছেই যেতিয়া তুমিও কৰিব লাগিছিল সেইটো সময়ত মই এইবোৰ একো গমেই পোৱা নাছিলো নহয় আৰু নীলিম দায়ো জইন কৰাৰ কথা নাছিল নহয় সিদিনাখন কিবা কথাত লাগি তেওঁৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু পিছদিনাখনে জইন কৰিবলগীয়া হ'ল তোমাকো যদি আকৌ কয় তেতিয়া জইন নকৰাকে নাথাকিবা এতিয়া সকলো আহিলেই যেতিয়া কাম কৰি ভাল পাবা তাত অফিচ নাযাওঁ নেকি আজি যাব নোৱাৰিম চাগে অন্তৰাই ফোন কৰিছিলে এবাৰ নাৰ্ছিং হোমলৈ যাব লাগিব গাটো বেছি বেয়া নেকি আজি ডক্টৰৰ লগত ভালকে কথা বতৰা পাতিলেহে গম পোৱা যাব নহলে কাম এটা নকৰ কিয় এবাৰ বাহিৰলৈকে দেখাই আগে আজি অন্তৰৰ লগত কথা পাতি চাওঁ যদিহে পাৰিম বুলি কয় তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই তাইৰ লগতে পঠিয়াই দিব লাগিব বহুত স্মাৰ্ট হয় বয়ে পাৰিব আৰু যদি যাওঁতে কিবা অসুবিধা হয় আমি বটুক পঠাই দিব পাৰিম তই ডক্টৰৰ লগত এবাৰ কথা পাতিবি তুমি আকৌ আমাৰ কোম্পানীত জইন কৰা তোমাৰ যদি কিবা ক'ব লগা আছে তেনেহ'লে ক'ব পাৰা মই আৰু সেইটো কোম্পানীত জইন কৰিব নোৱাৰিম অফিচৰ দায়িত্ব এতিয়া সমুদ্ৰৰ ওপৰত নাই নহয় এতিয়া মনেহে কোম্পানীৰ কাম চোৱা চিতা কৰিব মই সেইটো কাৰণে জইন নকৰো বুলি কোৱা নাই চেলেৰী কিবা ইছ্যু আছে যদি ক'ব পাৰা নাই মই আচলতে অহা 1 তাৰিখৰ পৰা নীলিম দাহঁতৰ কোম্পানীত জইন কৰিম কালি গৈ কথা বতৰাখিনিও পাতি আহিছিলোঁ আমি সকলো এমপ্লয়ীৰ চেলেৰী বঢ়োৱাৰ কথা ভাবিছোঁ চেলেৰীৰ কথা নহয় মেডাম তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰাৰ আগতেই যদি আপোনাৰ পৰা ফোনটো পালোঁ হয় তেনে আপোনালোকৰ কোম্পানীতে কৰিলোঁ হয় তোমাকো যদি আকৌ কয় তেতিয়া জইন নকৰাকে নাথাকিবা এতিয়া সকলো আহিলেই যেতিয়া কাম কৰি ভাল পাবা তাত কিশোৰে কোৱা কথাটো মিছা নহয় বৰ্মন খুৰা আৰু নীলিম দাই জইন কৰিলে যেতিয়া ময়ো দেখোন জইন কৰিব পাৰোঁ
সিদিনা মেডামে জইন কৰা বুলি কোৱাৰ পাছতো মই নিজেই জইন নকৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ কেনেকৈ জইন কৰোঁ বুলি কওঁ? সুবিধা পালে দুপৰীয়া কথাটো ক'ব লাগিব। বাবাৰ কথাবোৰ আপুনি লক্ষ্য কৰিছেনে নাই? কৰিছো, কিন্তু তই ভবা কথাখিনি মোৰ মনলৈ অহা নাছিল। নহলেনো কি কাৰণে এনেকে মন মাৰি থাকিব কওকচোন। সি ক'ত আছে এতিয়া? মই তাক সুধি চাবচোন। প্ৰথম ছুটীত ঘৰলৈ আহিছ, তাইক জনাই দিবি, নহ'লে তাই বেয়া পাব নহয়। কৰ সোনকাল সোনকাল। প্ৰেৰণাবা, মায়ে কি মই চাকৰি পোৱা বুলিয়ে ভাবি আছে নেকি? তোমাক দেখোন আগতে কৈছিলে। মই ইণ্টাৰ্ণৰ বাবে যোৱা বুলি কৈছিলো নহয়। তুমি মাক বুজাই কোৱা নাই নেকি? কৈছিলো, কিন্তু খুৰীয়ে বেলেগ কিবা এটাহে ভাবি আছে। তেওঁ ভাবিছে দুৱাৰে পৰা ঘৰলৈ যিমান মানুহ আহিছে সকলোকে কৈ আছে। এইবোৰ কথা কিয় ক'ব লাগে বাৰু? এতিয়া যেতিয়া মানুহে মোক ঘৰতে দেখিব তেতিয়া প্ৰশ্ন নকৰিব নেকি? ঘৰতে মানে তোমাৰ ইণ্টাৰ্ণ শেষ হ'ল নেকি? এমাহে আছিল। তেনেহলে তুমি খুৰীক কথাটো ভালকে বুজাই কৈ দিয়া। খুৰীয়ে আকৌ তোমাক দি পঠাবলৈ পিঠা বনোৱাৰ যা যোগাৰ কৰিলে। দুবৰী, মা। এই নীলিমেতো আমাৰ কোম্পানীত জইন কৰিলেই। প্ৰেৰণাই জানো তাত জইন কৰিব? মই নাজানো নহয় মা, তাইৰ লগত কথা পতা হোৱাই নাই। তুমি আজি ফোন এটা কৰি চাবাচোন। ক'তো যদি জইন কৰা নাই তেনেহলে আমাৰ কোম্পানীতে জইন কৰিব পাৰিব। আগতে এবাৰ মই ফোন কৰিছিলো, তাই কিন্তু জইন কৰিব নিবিচাৰিলে। তাই হয়তো অফিচত আগৰ পৰিৱেশটো আছে বুলিয়ে ভাবি আছিল। তুমি এবাৰ ফোন কৰি চাবাচোন। হ'ব বাৰু মা। বাবা শুনাচোন। আকৌ বাহি কেতিয়া ছুটি পাই? কিহৰ ছুটি? এইটো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ শেষ কৰি একেবাৰে ঘৰলৈ আহিছে। তাৰমানে সি আৰু চাকৰিলৈ নাযায়? যোৱা পুতেৰকে ভালকৈ সুধি আহাগৈ। তাক আপুনি ভালকে কথাটো কৈছিল নে নাই? কৈছো। তেনেহলে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই কিয়? আহিব চাগে, অলপমান ৰোৱাচোন। আৰু যদি নাহে? ঘৰত শাক পাচলি আছে নহয়, তাৰে কিবা এটা বনাই খুৱাবা আৰু। কি কথা কয় হে? ইমান দিনৰ মূৰত ল'ৰাটো আহিছে, মই কি তাক সুদা ভাত খুৱাম নেকি? আকৌ বাহি কেতিয়া ছুটি পাই? কিহৰ ছুটি? এইটো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ শেষ কৰি একেবাৰে ঘৰলৈ আহিছে। তাৰমানে সি আৰু চাকৰিলৈ নাযায়? যোৱা পুতেৰকে ভালকৈ সুধি আহাগৈ। বাইদেউ গৈ পেলাই কথাটো কৈয়ে আহিল। কি অলপ আগতে পাতিছিলোহে, কথাখিনি কলাই নে তুমি? সময়ৰ কাম সময়তে কৰিব। তুমি সময়ৰ কাম সময়তে কৰিব লাগে। তাকৈ যদি টকা পইচা কিবা অভাৱ হৈছে, এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকিলে বেমাৰ ভাল নহয় নহয়। সেইকাৰণে বাইদেউক কৈ আহিল। বাইদেৱে অৱশ্যে সুধিবলৈ গৈছে। বাবাই এতিয়া কথাটো সঁচাকে ক'লেই হয় আৰু। ধন, দেউতাৰে এইবিলাক কি কৈ আছে? তই বোলে চাকৰিলৈ নাযাও? মা, মোৰ চাকৰি হোৱা নাছিল নহয়, মই আগতেই কৈছিলো।
এইটো এটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম শেষ হ'ল আৰু সেইকাৰণে গুচি আহিম এতিয়া তাৰমানে তই ঘৰতে থাকিবি অঁ নালাগে তই আকৌ যা কলৈ যাম আকৌ মই তাতে ট্ৰেইনিং কৰিব আকৌ ভাল অফিচাৰৰ চকু পৰিলে তোক আকৌ ভৰাই দিব মা এইবিলাক তেনেকুৱা নহয় নহয় যাওঁ বুলিলে যাব নোৱাৰি সংসাৰৰ মানুহে তই কিশোৰ খুৰী ল'ৰা চাকৰি কৰি আহিলে গমেই পোৱা নাই যে ঐ ল'ৰা আহিবি ৰাতি ওলাবলৈ দেই পাৰ্টি লাগিব আকৌ আজি তেনে আহিবি সোনকালে ক'বলৈ কোনে কৈছিলে তোমাক এতিয়া দেখিছা নহয় এইবিলাক কিয় কৰা নোহোৱা নিচিনাকে এইবিলাক কিয় কৰা মই আগতে কৈছিলে তোমাক মানে কি কৈছো মিছা কিয় মাতিছা বাবা মই মিছা নাই মতা খুৰী তেনেহলে কি কাৰণত তুমি এনেকৈ আছা নহয় মানে অন্তৰাৰ দেউতাক হস্পিটালত এডমিট হৈ আছে আৰু জোৱাইক হিচাপে হয়তো তুমি বহুতখিনি খা খৰচ বহন কৰিব লগা হৈছে তেনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম আছে আমাক কোৱা আমি আছো নহয় ঘৰখনত এনেই ইমানটা সমস্যা হৈ আছে তাৰমানে মই কৰা কোৱা এতিয়া তোমাক কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন আছে 50,000 হ'ব তেনেহলে সেইখিনি টকা ময়েই তোমাক দিম আনি আছো এতিয়া আকৌ এইবোৰ টেনচন লৈ নাথাকিবা দুবৰী তোমাৰ ফোনটো অথনিৰ পৰা বাজি আছে লোৱা কোনে বা কৰিছে নাজানো দেই ঠিক আছে বাৰু হ'ব অঁ হেল্ল' দুবৰী মই তোমাক খবৰ এটা ল'বলৈহে ফোন কৰিছিলোঁ মই তোমালৈ ফোন কৰাৰ কথাই আছিল জানা কোৱাচোন আগতে তুমি কোৱা কিয় ফোন কৰিলা ক'লোৱে খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰিছিলোঁ মাহঁতৰ ভালনে ভালেই আৰু দেউতা খুৰা নাই অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে দেউতাৰ মানে এতিয়াও ঘূৰি ফুৰা অভ্যাসটো যোৱাই নাই নাই খুৰীয়ে কৈ কৈও খুৰাৰ স্বভাৱটো সলনি কৰিব পৰাই নাই বাৰু তুমি কিয় ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলা কোৱাচোন সেইদিনা মায়ে ক'লে তুমি বোলে নতুন কোম্পানী এটা জইন কৰিছা নীলিম দাহঁতৰ কোম্পানীত জইন কৰাৰ কথা আছিল জইন কৰিলা নেকি যিজনে জইন কৰিবলৈ কৈছিল তেওঁ দেখোন এতিয়া তোমালোকৰ কোম্পানীত জইন কৰিলে তুমিও নহ'লে গুচি আহা হেল্ল' প্ৰেৰণা তুমি একো নাই কোৱা যে নহয় মানে সিদিনা মেডামে ফোন কৰোঁতে নোৱাৰিম বুলি ক'লো যে এতিয়া আকৌ তোমাক মায়ে গুচি আহিবলৈ কৈছে তুমি জইন কৰি কোম্পানী সমুদ্ৰক মাতি দেচোন আৰে ময়ে দেখোন সমুদ্ৰ আৰু ক'ৰ পৰানো মই সমুদ্ৰক মাতি দিম তই সমুদ্ৰ নহয় চোৱা মাইনী মই তোমাক ভালদৰে বুজাই দিছো श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउ रघुवर बिमल जसु जोदाय नीता अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे संगीतकारों अभिनेताओं कलाकारों नर्तकियों जैसे हस्तियों के चार्ट में ऐसा क्या खास होता है। यह शुक्र होता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे आप अपनी कुंडली में सही जगह पर रखना पसंद करेंगे। यह भौतिक सुख प्रेम प्रसंग प्रेम रोमांस विवाह और मित्रों के बारे में आपको बताता है। सौंदर्य संगीत नृत्य नाटक शुक्र है। विलासिता से जुड़ी कोई भी चीज जैसे गहने महंगी कारें सुंदर घर शुक्र है। सुंदर कपड़े शुक्र है। शुक्र का अर्थ है अपारदर्शिता। ज्योतिष में शुक्र का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है जिसे
आप सांसारिक सुखों की देवी कहा जाता है। पुरुषों के चार्ट में विवाह के मुख्य कारक शुक्र होते हैं। शुक्र द्वारा शासित पुरुष और महिलाएं काफी दयालु और सामाजिक होते हैं। पीड़ित होने पर शुक्र असंतोषजनक घरेलू परिस्थितियों और प्यार में चिंता, वित्त के माध्यम से दोस्तों के साथ कठिनाइयां पैदा करता है। शुक्र वाहन और शासक का कारक होता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का महत्व। शुक्र सभी में विशेष सबसे चमकीला ग्रह है। यह वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। दूसरे भाव में और 7वें भाव में नटल चार्ट पर शासन करता है। यह प्रत्येक राशि में 28 दिन खर्च करता है और राशि चक्र को पूरा करने के लिए 225 दिन लगते हैं। यह ग्रह पत्नी, विवाह, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र नरम एवं विनम्र ग्रह है। यह एक सौम्य ग्रह है। शनि, बुध और राहु इसके मित्र हैं। चंद्रमा, सूर्य, मंगल के साथ शत्रुता है। इसकी विंशोत्तरी दशा 20 वर्ष की होती है। यह नक्षत्र भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा के स्वामी हैं। यह मीन राशि में विस्तृत है और कन्या राशि में दुर्लभ है। इसका स्वामी रत्न हीरा है। लाइमलाइट और विलासिता जैसे डिजाइनिंग, फैशन, शॉपिंग, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, मॉडलिंग, विज्ञापन, फैशन से संबंधित प्रोफेशन शुक्र से संबंधित हैं। मनोरंजन स्थल जैसे मनोरंजन पार्क, थिएटर, सिनेमा, रेस्टोरेंट और कला दीर्घाएं आदि शुक्र से संबंधित होती हैं। अच्छा शुक्र आपको सुंदरता दे बनाता है। उन खूबसूरत महिलाओं को याद रखें। गोरा रंग, पतला शरीर, सुंदर आंखें, आकर्षक गोरा रंग, पतला शरीर, सुंदर आंखें, आकर्षक रूप, तेज सुंदर चेहरे और कटीले चमकीले बाल। हाँ, यह शुक्र है। शरीर में शुक्र यौन अंगों, वीर्य, निजी अंगों, गुर्दे, चेहरे, आंखों, गर्दन, गले, ठोड़ी, गाल और त्वचा का प्रतिनिधित्व करता है। कमजोर शुक्र मधुमेह, अनीमिया, पथरी की समस्या, सेक्स समस्याओं, अस्थमा आदि का कारण बनाता है। शुक्र सुंदरता, कपड़े, पत्नी, प्रेम, काम शक्ति, वैवाहिक सुख, सौंदर्य ग्रह, काव्य, संगीत, गान, आंख, स्त्री का कारक है। शुक्र सौंदर्य और वैभव का कारक है। मान सम्मान, भोग विलास, सुख संपत्ति, आभूषण, सुंदरता, बड़ी बड़ी आंखें, दिखने में सुंदर शुक्र है। शुक्र जल का कारक तत्व है। मनोरंजन कार्य, सलाहकार, अध्यापक, प्रवचनकर्ता, दार्शनिक, मनोचिकित्सक शुक्र के ही कारक तत्व हैं। बार फिर से मैं आई हूं आपके लिए गुरु ग्रह की जानकारी लेकर। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह की कुछ विशेषताएं होती है। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह की अपनी अपनी परिभाषा अलग अलग होती है। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि और राहु, केतु। बृहस्पति देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। शील और धर्म के अवतार हैं। प्रार्थना और बलिदानों में मुख्य प्रस्तावक हैं, जिन्हें देवताओं पुरोहित के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ज्योतिष में इन्हें बृहस्पति ग्रह का स्वामी माना जाता है। वे सत्वगुणी होते हैं, ज्ञान और शिक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वे देवताओं के गुरु माने जाते हैं। दानवों शुक्र गुरु देवताओं के गुरु और शुक्र को दैत्यों के गुरु माना जाता है। वे पीले और सुनहरे रंग के होते हैं और एक घड़ी, एक कमल और माला धारण करे हुए होते हैं। इनका मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम गुरुवे नमः है। विशेष लगन की स्थिति में अनुसार अशुभता बल प्रदान करते हैं। बल जैसे सिंह लगन के लिए शनि अशुभ ग्रह है और मगर तुला लगन के लिए अति शुभ माने जाते हैं। इनके गुरु भारी, शरीर मोटा, चर्बी, पुरुष, ब्राह्मण, सौम्य, सत्वगुणी ग्रह हैं। ये आकाश तत्व के ग्रह हैं। गुरु कफ प्रकृति के ग्रह हैं।
गुरु का रंग पीला होता है। यह स्थूल शरीर वाला होता है और आकाश तत्व के ग्रह है। उदर बड़ा होता है, यह स्थूल शरीर का होता है। वृद्धा अवस्था के ग्रह हैं। बड़ा उदर पुरुष कारक ग्रह है। इसकी ऋतु हेमंत ऋतु होती है और गुरु ग्रह की दिशा ईशान दिशा होती है। ये गुरु की दिशा ईशान दिशा होती है और ब्राह्मण वर्ण के हैं। इनका रंग पीला है। इनकी धातु पीतल और सोना कही जाती है। गुरु को देवगुरु कहा जाता है। गुरु की राशि धनु और मीन है। इनका ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु को ज्ञान, वैराग्य, धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार बुध की कुछ खास विशेषताएं। भारतीय ज्योतिष में और पौराणिक कथाओं में 9 ग्रह गिने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, राहु, केतु और शनि। बुध ग्रह के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। बुध व्यापार के देवता हैं और व्यापारियों के लिए रक्षक हैं। बुध चंद्र और तारा के पुत्र हैं। बुध ग्रह का देवता है। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध के हाथों में तलवार, ढाल, गदा, वरमाला आदि धारण की हुई है। बुध को युवराज भी कहा जाता है। बुध रामनगर मंदिर में एक पंख वाले शेर की सवारी करते हैं। आकाश में तेजी से गमन करने के कारण बुध ग्रह को संदेशवाहक देवता भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने बुध को भूतल का स्वामी बताया गया है। बुध का रथ श्वेत है और इसमें वायु के समान गति वाले 10 घोड़े जुते हुए हैं। बुध को सुव्यक्ता, शांत और हरे रंग में प्रस्तुत किया जाता है। बुध को बुद्धि बड़ी गंभीर थी, अतः ब्रह्मा जी ने उनका नाम बुध रखा। बुध का मंत्र है ओम बुध बुद्धाय नमः। बुध यह एक नपुंसक ग्रह है। इसका रंग हरा होता है। बुध एक रजोगुणी ग्रह है। यह शरद ऋतु और कर्म का स्वामी होता है। पृथ्वी तत्व होता है। यह वैश्य जाति का ग्रह माना जाता है। बुध त्रिदोष प्रकृति का कारक है, वात, कफ और पित्त। बुध को राजकुमार भी कहा जाता है। बुध वाणी, प्रवक्ता, चालाकी का कारक माना जाता है। बुध पृथ्वी तत्व का ग्रह माना जाता है। बुध का रंग हरा होता है और इसका बुध यंत्र होता है। मंगल को सेनापति भी कहा जाता है। मंगल एक क्रूर ग्रह है। मंगल तंदुरुस्त, साहस, शरीर वाला, आक्रामक पुरुष ग्रह कहा जाता है। मंगल एक क्षत्रिय ग्रह है। मंगल पापी ग्रह है। मंगल लाल रंग का है। मंगल भाई बहन, युद्ध, सेना, हथियार, सैनिक आदि का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल मंगल हथियार, चोर, लाल रंग, भाई बहन, रक्त, पित्त, मांसपेशियां, ऑपरेशन, कान आदि के कारक हैं। मंगल पराक्रम, भूमि, बाहुबल, कुश्ती, पित्त, प्रकृति और कानून का कारक है। इसे भौम भी कहते हैं। और मंगल साहस का भी प्रतिनिधित्व करता है। मंगल मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है। आइए जानते हैं मंगल ग्रह की कुछ विशेषताएं। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की कुछ खास विशेषताएं जो आप जानना चाहेंगे। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह की अपनी परिभाषा है। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में 9 ग्रह गिने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु। मंगल को भौम यानी भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। मंगल ऊर्जावान,
कार्रवाई आत्मविश्वास और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल युद्ध के भी देवता हैं और ब्रह्मचारी हैं। मंगल लाल रंग और मंगल के देवता हैं। मंगल की 4 भुजाएं हैं तथा शरीर एवं रोए लाल रंग के हैं। मंगल भेड़ के वाहन पर सवार होते हैं। मंगल हाथों में गदा और अभय मुद्रा वर मुद्रा धारण की हुई है। मंगल ग्रह को संस्कृत में अंगारक यानी जो लाल रंग का होता है वह कहा जाता है। मंगल की प्रकृति तामस गुण वाली है। सामान्यतः मंगल का मंत्र है ओम हनुमते नमः। सामान्य मंत्र है ओम अंगारकाय नमः। मंगल की शांति के लिए मंगलवार का व्रत हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव उपासना करनी चाहिए। ऋण से मुक्ति के लिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण ही है। इनका ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। हर तरह के ऋण और कर्जे से मुक्ति मिलती है। अग्रवाल, आपका फिर से स्वागत है। सूर्य के बाद सबसे शक्तिशाली ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन, भावनाओं, मनोदशा पर नियंत्रण करता है। चंद्रमा कर्क और चौथे भाव पर शासक करता है। चंद्रमा 2.5 दिन खर्च करता है। ज्योतिषीय चक्र को पूरा करने में लगभग 30 दिन लगते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के चक्र लगाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की लगभग दूरी 2,38,000 मील है। चंद्रमा पृथ्वी पर प्राणियों को जीवन नियंत्रित करता है। चंद्रमा भी माँ का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह प्रकृति में स्त्री है। यह हमें डरपोक भी बना सकता है और साहसी भी बनाता है। चंद्रमा बच्चे के जन्म के समय संवेग को नियंत्रित करता है। चंद्रमा के जन्म के समय अनुमानित नहीं होने देता है। पृथ्वी के साथ इसकी निकटता और गति की कठोरता इसकी एक शक्तिशाली महत्वाकांक्षी बनाती है। यह तरल पदार्थों पर, ताजा पानी पर, दूध पर, नौकायन पर, शराब बनाना, नर्सिंग महिलाओं को नियंत्रित करता है। दूध पर नियंत्रित रहता है। मस्तिष्क पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव रहता है। चंद्रमा द्वारा शासित लोग आमतौर पर संवेदनशील, भावनात्मक और घरेलू होते हैं। यह चंद्रमा चार्ट में अगर अनुकूल नहीं है तो मूल निवासी बहुत आसान से खाने पीने आनंद लेने में मस्त रहते हैं। चंद्रमा द्वारा शासित व्यक्ति रसोइया, नर्स, क्लर्क, तरल पदार्थ करने वाले कार्य आदि के रूप में अच्छा कार्य करते हैं। ज्योतिष में चंद्र ग्रह का महत्व, यह बृहस्पति, सूर्य और बुध के साथ मित्र होते हैं और शनि, राहु, केतु के साथ शत्रु होते हैं। चंद्रमा का विषमोत्तरी दशा 10 वर्ष की होती है। चंद्रमा रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं। चंद्रमा को 3 डिग्री वृषभ राशि पर उच्च के माने जाते हैं और चंद्रमा कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि 4 से 30 डिग्री के बीच वृषभ राशि होती है। मोती चंद्रमा का मूल रत्न है। यदि सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। माता बच्चे का पालन पोषण करती है, इसलिए चंद्रमा माँ की चीजों का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि यह एक महिला ग्रह है, इसे ग्रहों के रूप में रानी माना जाता है। मजबूत चंद्रमा बहुत प्यार और देखभाल का संकेत देता है। माँ को बच्चे के मानसिक को लाने में और विकास करने के लिए पर्याप्त संघर्ष सक्षम बनाता है। पत्नी के लिए चंद्रमा द्वितीयक महत्व होता है। चंद्रमा की विशेषताएं: मजबूत चंद्रमा पब्लिक रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसकीपिंग, नर्सिंग, कुकिंग, कैटरिंग, साइकोलॉजिंग, फिजिशियन, करियर एवं भावनाओं से संबंधित जॉब देता है। होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थान, अस्पताल चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा भी पानी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए
पानी के स्थान पर चंद्रमा पानी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पानी के स्थान पर पानी की चीजें अब जहाज आदि नाविक नौका से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा चंद्रमा मन भावन उपस्थिति, अच्छी बोलने की क्षमता, अच्छी स्मृति, अच्छे कर्म, अच्छी कल्पना, अच्छी बुद्धि, प्रजनन शक्ति और अच्छी भावनाएं देता है। अच्छे चंद्रमा वाले लोग आमतौर पर महिलाओं द्वारा पसंद किए जाते हैं। कमजोर चंद्रमा आपको चंचल स्वभाव दे सकता है, असहिष्णुता, असंवेदनशीलता और यहाँ तक कि अनिद्रा के रूप में चंद्रमा नींद का प्रतिनिधित्व भी करता है। चंद्रमा के माध्यम से पारिवारिक, वित्तीय सांत्वना, सुखी वैवाहिक जीवन, विरासत, आय और लाभ, बुनियादी आराम, परिवार, बुनियादी शिक्षा, वैवाहिक जीवन की स्थिति, सामाजिक व्यवहार की आदि की भी जांच कर सकते हैं। शरीर में यह चेहरे, मन, भावनाओं, सहिष्णुता, बुद्धि, कल्पना आदि, याददाश्त, प्रजनन क्षमता, रक्त, स्तन, पेट, फेफड़े, छाती, पुरुषों के लिए बाई आंख, मासिक धर्म, जननांग अंगों और महिलाओं के लिए दाई आंख का प्रतिनिधित्व करना है। चंद्रमा का यंत्र है चंद्र यंत्र और चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इसका रत्न है मोती और रंग है सफेद। नमस्कार, मैं नीता अग्रवाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सूर्य के बाद चंद्रमा दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। यह मानव भावनाओं और मनोदशा का पर नियंत्रण करता है। चंद्रमा मन का और कर्क राशि का कारक है। चंद्रमा कर्क और चतुर्भाव पर शासन करता है। यह प्रत्येक संकेत में 2.5 दिन खर्च करता है। प्रत्येक राशि चक्र के माध्यम से अपने ज्योतिष चक्र को पूरा करने में लगभग 30 दिन लेता है। ज्योतिष में चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की लगभग दूरी 2,38,000 मील है। चंद्रमा पृथ्वी पर प्राणियों के जीवन को नियंत्रित करता है क्योंकि यह प्रकृति में स्त्री है। यह हमें डरपोक भी बनाता है और साहसी भी बनाता है। चंद्रमा बच्चे के जन्म के समय को नियंत्रण करता है। जन्म के समय में चंद्रमा बीमारियों के कारण बनता है। उचित विकास उत्पन्न नहीं करता है। गति की कठोरता इसकी शक्तिशाली महत्वाकांक्षी बनाता है। यह तरल पदार्थ, ताजा पानी, दूध, किराने का सामान, मछली, पेय, महिलाओं पर नियंत्रित करता है। मस्तिष्क पर चंद्रमा का शासन होता है। चंद्रमा द्वारा शासित लोग आमतौर पर संवेदनशील, भावनात्मक और घरेलू होते हैं। यदि चंद्रमा चार्ट में अनुकूल नहीं है तो मूल निवासी बहुत आसान में से खाने पीने या आनंद लेने में व्यस्त रहते हैं। चंद्रमा द्वारा शासित व्यक्ति नर्स, रसोइया, हलवाई, माली, तरल पदार्थ का कार्य करने वाले, क्लर्क आदि रूप में कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व, यह बृहस्पति, सूर्य, बुध, शुक्र आदि के मित्र हैं। मैं नीता अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सूर्य के बाद आज जानते हैं चंद्रमा के बारे में। सूर्य के बाद सबसे शक्तिशाली ग्रह है चंद्रमा है। यह एक स्त्री ग्रह है। चंद्रमा के पिता अत्रि है। यह माता तुल्य स्त्री का रज कारक ग्रह है। यह सौम्य ग्रह है। चंद्र स्त्री ग्रह है। इसका रंग सफेद होता है। इसका वार सोमवार होता है। चंद्र वैश्य ग्रह है। यह एक सौम्य ग्रह है। यह सतोगुणी है। इसका कारक जल है। चंद्र वात कफ प्रकृति का कारक है। मैं नीता अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं सभी ग्रहों के राजा सूर्य देव की। ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों की परिभाषा अलग अलग है।
भारतीय ज्योतिष एवं पौराणिक कथाओं में 9 ग्रह माने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सूर्य सभी ग्रहों का राजा कहलाते हैं। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन चल रहा है। सूर्य के हाथ और बाल सोने के हैं। सूर्य देव के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं और 7 चक्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। सौर देवता आदित्यों में से एक कश्यप और उनकी पत्नियों में से एक अदिति के पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य की अधिक प्रसिद्धि संततियों में है शनि यानी सैटर्न, यम मृत्यु के देवता, कर्ण महाभारत वाले कर्ण हैं। सूर्य रवि के रूप में रविवार यानी इतवार के स्वामी हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। वेदों में सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य का मंत्र है ओम गृहणी सूर्याय नमः। प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में सूर्य मंत्र जप करना चाहिए। सृष्टि में सबसे पहले सूर्य स्वरूप प्रकट हुआ, इसलिए इनका नाम आदित्य पड़ा। सूर्य का एक अन्य नाम सविता भी है। आइए जानते हैं अब इनकी विशेषताएं, इनके विस्तृत रूप से इसके सूर्य के बारे में जानकारी। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यह एक अग्नि तत्व ग्रह है। यह पुरुष जातक ग्रह है और सूर्य को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। यह एक पुरुष कारक और इनकी जाति क्षत्रिय जाति कहलाती है। इनका गुण सतोगुण कहलाता है और यह ग्रीष्म ऋतु के स्वामी हैं। ये आत्मा के कारक हैं और पित्त प्रकृति के कारक हैं। यह एक स्थिर ग्रह है। सूर्य एक स्थिर ग्रह है। सूर्य पराक्रम, आत्मा, रोग प्रतिरोधक, हड्डियां, क्षमता, ज्ञान, पवित्रता, लाल रंग, लाल वस्त्र, राजनीति, दादा दादी, पिता और पिता तुल्य सभी लोग आते हैं। यह एक क्रूर ग्रह है। इसे पापी ग्रह भी माना जाता है। सूर्य का पौधा मदार है। सूर्य का रंग लाल है। इसका वार रविवार है। ये जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2025 धनु राशि वालों के लिए स्थिर विकास और नए अवसरों का साल रहने वाला है। हालांकि इस साल चुनौतियां भी सामने आ सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए 2025 में कुछ खास जुड़ी बातें। नौकरी और कारोबार के समय साल की शुरुआत में नौकरी और कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल नहीं होने के कारण थोड़ी से कामों में दिक्कत आ सकती है। परिवार और रिश्ते, साल की शुरुआत में पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं रहेगा। चतुर्थ स्थान का राहु परिवार में कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य, साल की शुरुआत में स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। छठे भाव में गुरु छोटी मोटी परेशानियों से आपको परेशान कर सकता है। प्रेम संबंध, साल का पहला हिस्सा प्रेम संबंध के लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होने से लव लाइफ में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यह साल बहुत सफल रहेगा। जमीन जायदाद, वाहन, धनु राशि के जातकों के लिए वाहन खरीदने के सफल योग बन रहे हैं और